Hello everyone, my name is Vidushi. Welcome back to my YouTube channel. I am a first year BCom honors student at Sri Ram College of Commerce, Delhi University. In today's video, I'm going to break down the exact strategy that you need for your class 10th English. I scored a 98 out of 100 in English and trust me, मैंने English सारा साल नहीं पढ़ी थी. I did English only towards the end, but when I did, it was with a strategy. तो वही स्ट्रैटेजी वही पैटर्न लेके मैं आपके पास आई हूँ सो दैट दिस हेल्प्स यू आउट सो वॉच टिल द एंड एंड लेट्स जस्ट जंप राइट इन. Okay, so to start with class 10 English, we're going to discuss a complete roadmap which will help you on your smart preparation. And trust me, English में score करना is very easy. You just need the right guidance and right technique. So this one video is enough for you to go about. सबसे पहले I get into the points to take care or what helped me get a good score in English. I would like to talk about the structure that English has for class 10. So, सबसे पहले you have your reading passage. Now, your reading passage is to test whether you're able to understand, whether you're able to analyze or extract information. So, reading passage का एक ही go to होता है is practice as much as you can and try solving as hard passages as you can. I would not say यहाँ पे कि go for solving easy passages. There are two reasons to it. Your English passage, reading passage is gonna continue for the rest of your life. तुम +1 में करते हो, +2 में करते हो, +2 के बाद जाके कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, रीडिंग पैसेज हर जगह ही आएगा. तो अभी से ही इफ यू वर्क ऑन इट इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली. देयर इज नो हार्म इन सॉल्विंग अ हार्डर पैसेज. Coming to the grammar topic, the grammar for class 10th is quite basic. You just need to know the basic rules, basic sentence structure, basic usage, and you will be good to go. Coming to the writing section, in class 10th, writing was basically two things. It was either a letter or an analytical paragraph, majorly, and that is what will help you get into a good zone. And writing may be the point that helps you is write and get it checked from your teacher. यहाँ पे it gets very important to know certain paragraphs, certain non-negotiable lines जो आपने हर तरफ लिखनी है, certain templates for yourself which will help you. Coming to literature, literature has the highest weightage for you. It has text, it has poetry, it has stories, and यहाँ पे the examiner can check you on the basis of a long answer, on a short answer, on the basis of the extract. And all of this gets easier if you read NCRT, if you know the story, if you know the summary, if you know the message. So that is about literature. A very interesting fact to note here is that your literature carries your highest marks. But scoring कहाँ पे आएगी आपकी reading में और writing में if you have the right strategy for yourself. Moving forward, we'll go section wise. So सबसे पहले आते हैं literature पे. लोगों को literature बहुत boring लगती है. A lot of students text me कि we are unable to score in English. English is draining our percentage. What do we do? So the only thing I can do in English is a smart way of studying. Your literature, people think कि अगर हमने एक YouTube वीडियो देख ली, एक summary देख ली, we are good to go. This is not it. You need to sit down. You need to read the text from NCRT, which gets important because examiner wants you to give a textual evidence. He wants you to write in the language it is written in the book. So it gets very important for you to understand कि literature सिर्फ YouTube वीडियो देखने से या YouTube summaries देखने से या LC पढ़ने से नहीं होगा. For English, you need to read the NCRT well. You need to know what the summary was. You need to know what the theme was, what the central idea was. You need to see what a particular character is doing. What is the motivation of that character? ऑथर किस टोन में बात कर रहा है और एक बेसिक कहानी पता होना, स्टोरी पता होना चैप्टर की इज वन थिंग. चैप्टर में क्या एडजेक्टिव्स है जो इम्पोर्टेंट है, चैप्टर में क्या ऐसे पॉइंट्स है जो हम अपने आंसर में लिखे, कैस कौन सी ऐसी वोकैबुलरी है. दैट इज वेयर द रियल प्ले कम्स इन लिटरेचर. So I have a 5-point chapter analysis method for you, which will help you for English. So सबसे पहले आता है कि जब आप चैप्टर को रीड करने जा रहे हो तो देखो ये किस थीम के बारे में बात कर रहा है, कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम क्या है, इसका आइडिया क्या है, और इसके बारे में यू कैन गेट अ वेरी फेयर आइडिया फ्रॉम दी एलसी. आप देखो कि क्या वोकैबुलरी यूज्ड है हर चैप्टर में, क्या थीम यूज्ड है हर चैप्टर में, और
पूरा अंडरलाइनिंग सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर क्या है आपको ये पता होना चाहिए. देन यू सी व्हाट वाज द लेसन दैट द ऑथर वांटेड टू गिव. क्या इसमें कोई सोशल मैसेज है जो रिलेट करता है जिससे हमें लॉन्ग क्वेश्चन मिल देखने को मिल सकता है. क्या इसमें कोई स्टोरी थी जो रियल लाइफ है. तो एक मैसेज को अपने एक्सट्रैक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट. देन एवरी चैप्टर एवरी स्टोरी हैज सर्टेन करेक्टर्स. तो उसका करेक्टर स्केच कि उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, वो उसके एक्शंस कैसे थे. if there's a very important phrase in the chapter, if there's a very important adjective in the chapter which has been used again and again to describe that character, keep a note of that. That is how you get good score in literature specifically. की लाइंस जो आपको लगता है कि तीन चार पावरफुल ऐसी कोटेशंस हैं, तीन चार पावरफुल ऐसे फ्रेजेस हैं which can help you get the essence of the chapter and which you can use in your answers. इसका नोट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पीवाईक्यूज को देखो, यू विल अंडरस्टैंड पीवाईक्यूज यूजुअली आर वेयर यू कुड रिलेट इट टू सम पावरफुल फ्रेज इन द चैप्टर एंड अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. यूजुअली इन दोनों को रिलेशन किया होता है किसी एक क्वेश्चन में. और जब आप ये बात समझ जाते हो कि ओके यहाँ पे ये वाले पार्ट की बात हो रही है, पर इस पर्टिकुलर स्टोरी के साथ मुझे ये वाले थीम को या ये वाले मैसेज को रिलेट करना है, दैट्स हाउ यू राइट अ गुड आंसर. सो हर चैप्टर को इस पर्टिकुलर पैटर्न से आप एनालाइज करना शुरू करोगे, सो योर लिटरेचर में नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा. Moving forward, we talk about key, what are some keywords which you can use while you are writing your answers. आपकी सीबीएसई के इंग्लिश के पेपर में आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है. फॉर एग्जाम्पल आप लिखो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर इज द ऑथर सजेस्ट्स, this highlights, this indicates that, this character displays, it is rightly said, we can figure out. All of these are some phrases जो आप अपने आंसर पे यूज कर सकते हो which will improve your vocabulary, improve your answer writing a lot. एग्जामिनर को ऐसे phrases चाहिए क्योंकि इंग्लिश का पेपर है. इंग्लिश के पेपर में कभी पॉइंट्स में आंसर मत लिख के आना, गलत हो जाएगा. वो ये नहीं देख रहे हैं कि तुम क्रिटिकली सोच रहे हो, तुम बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रहे हो कि अरे उसने ये क्यों किया या उसने ये ऐसे किया. दे आर सीइंग इट, आर यू एबल टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज, आर यू एबल टू यूज द करेक्ट vocabulary or not, are you able to put in the right words or not. That is what makes a difference when it comes to any language. Next is रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स लेना बहुत आसान है. अ लॉट ऑफ पीपल वुड से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता क्या करें. एग्रीड. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनप्रिडिक्टेबल जरूर होता है, पर अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है तो आप उसको एस कर सकते हो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपने सही से अप्रोच कर लिया, यू कैन इजीली स्कोर अ फुल मार्क्स. क्यों? क्योंकि 10th के लेवल पे मोस्टली आपको आपके सारे आंसर्स पैसेज में से मिल जाएंगे. तो सबसे पहले देयर आर टू वेज टू सॉल्व अ रीडिंग पैसेज. ईदर यू स्किम योर पैराग्राफ फर्स्ट और यू स्किम योर क्वेश्चंस फर्स्ट. आई हैड सजेस्ट दोनों मेथड्स करके देखो आपकी एक्यूरेसी किससे ज्यादा आ रही है और आपका टाइम किससे कम लग रहा है. दैट इज व्हाट यू शुड प्रेफर. आई वुड सजेस्ट यू वन मेथड. आई वुड से यू दोनों करो. दो पैराग्राफ्स एक मेथड से सॉल्व करो, दो पैराग्राफ्स एक मेथड से सॉल्व करो. देन सी व्हाट टुक लेस टाइम, व्हाट गेव यू मोर एक्यूरेसी. उसके बेसिस पे फ्रेम अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ. फॉर मी आई यूज्ड टू सी द क्वेश्चंस पहले एंड देन रीड द पैराग्राफ. फिर आप स्पेसिफायर्स देखो पैसेज के अंदर कि जो चीज क्वेश्चन में थी, क्वेश्चन पे से कीवर्ड ढूंढना, वही कीवर्ड क्या मेरे पैसेज में कहीं पे है. उन दोनों चीजों को रिलेट करने की कोशिश करो. दैट्स हाउ यू फाइंड आउट योर आंसर्स. फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आना चाहिए. एंड द ओनली वे यू कैन अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ समथिंग दैट यू हैव नॉट रेड is either by having a broad vision or by practicing guesswork. How do you practice guesswork now? ये आपको समझ में नहीं आया कि पैसेज में क्या लिखा है, but still you can figure out by making some patterns कि क्वेश्चन में ये कीवर्ड है, आंसर में ये कीवर्ड है, ऑप्शन में ये कीवर्ड है, पैसेज में ये है. तो यू स्टार्ट फाइंडिंग पैटर्न्स, दिस कैन वर्क. और अपनी रीडिंग बढ़ाओ कि जो पैसेज में आए वो तुम्हें पता हो एंड यू आर एबल टू ग्रास्प दैट एंड यू आर एबल टू सॉल्व दैट. और अगर आपके पास डायरेक्ट आंसर्स है तो डायरेक्ट आंसर्स को पिक कर सकते हो पैसेज से, बट उसमें एड इन समथिंग फ्रॉम योर ओन.
पैराफ्रेज कर दो, रिफ्रेज कर दो, सेम लाइन को किसी और तरीके से लिख दो। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, उसके मार्क्स नहीं कटते हैं, बट यू कैन add in your points always. That makes an impact. So this is for reading comprehension. Moving forward, we have reading questions जो है, reading पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या क्या टाइप्स हो सकती है और उसको सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। बेसिकली चार तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, हो गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जो आंसर है जिसका पैराग्राफ में पक्का पक्का दिया होगा, तो या तो उसको ढूंढो और लिख दो और उसके साथ में एक आधी लाइन अपनी ऐड कर दो। ये वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सब इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इन्फरेंस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि एक चीज ना पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिखी थी, फिर एक थर्ड पैराग्राफ में लिखी है, तो वो तुम्हें बोलेगा कि तुम इसमें से क्या समझे, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द रिलेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड सम लाइंस इन द पैराग्राफ जहाँ पे लिखा होगा थस, thus we can conclude, in conclusion, hence। so ये वाले वर्ड्स तुम्हें बताएंगे कि ये कोई कंक्लूडिंग पार्ट है। जहां पे भी hence या thus जैसे वर्ड्स यूज होंगे, इसका पक्का पक्का कोई ऊपर लाइन होगी रिलेशन में। उसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि तुम कीवर्ड्स देखो कि ये वाली लाइन में इस चीज की बात हो रही है, क्या इस चीज की बात कहीं पे ऊपर हुई थी। सो इफ दैट्स द केस एंड यू फाइंड अ रिलेशनशिप, यू कैन इजीली लोकेट द इन्फरेंस यहाँ पे। इन्फरेंस में एक और चीज होती है कि उस पर्टिकुलर चीज का इम्प्लाइड मीनिंग क्या था, कि डायरेक्ट मीनिंग क्या नहीं था, इम्प्लाइड मीनिंग क्या था। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि ऑथर कहना क्या चाह रहा था यहाँ पे, आप समझे क्या। सो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए व्हाट यू डू इज यू जस्ट प्रैक्टिस, यू सिट डाउन एंड प्रैक्टिस वेल एंड यू विल बी गुड टू गो। फिर आता है वोकैबुलरी क्वेश्चन। वोकैबुलरी क्वेश्चंस में क्या होता है, वो तुम्हें एक वर्ड दे देगा, तुम बोलेगा कि इसका सिनोनिम बता दो, एंटोनिम बता दो या मीनिंग बता दो एज यूज्ड इन द पैसेज। अगेन टू टेक्निक्स, ईदर यू प्रैक्टिस 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 कि आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है, और you try to understand the context. When I say you understand the context and your context becomes your best guide, it means two things. One, that आप देखो कि ये पर्टिकुलर लाइन में अगर ये वर्ड ना होता तो ये क्या कहना चाह रहा है, what sense does this line make, that is the context. Second way to understand the vocabulary is to break down that into root words, कि अगर कोई वर्ड है इससे रिलेटेड, हमने कहीं पे वर्ड बना था, क्या मैं इसको तोड़ के कहीं से रिलेट कर सकती हूँ। तो दिस इज हाउ यू अप्रोच अ vocabulary question. A lot of times you can see the options and try to fit them in. That is how you can do this also. फिर आ जाता है ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट या assertion reason statements जो आफ्टर द एनईपी केम आर देयर। तो इसमें क्या हो जाता है, आप देखो कि जो तो स्टेटमेंट क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है assertion की या रीजन की और वो ट्रू है तो ठीक है, रीजन है या नहीं है या एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ होती है। तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि सी इफ देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज लाइंस इन द पैराग्राफ, इफ देयर वाज एनी देन ओनली डू दैट। अपनी बेसिस पे मत करना, पैराग्राफ के बेसिस पे करना। दैट इज व्हाट इट गोज बाय। अभी के लिए व्हाट यू डू इज फॉर रीडिंग पैसेज इस प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, उसका पैसेज सॉल्व करो, इस साल का सैम्पल पेपर उठाओ उसका पैसेज सॉल्व करो, पिछले साल का सैम्पल पेपर उठाओ उसका पैसेज सॉल्व करो। देयर इज नो अदर वे टू प्रैक्टिस रीडिंग पैसेजेस दैन टू डू रीडिंग पैसेजेस। दैट्स इट फॉर रीडिंग पैसेजेस। ग्रामर पे आते हैं। ग्रामर में आपको जो है बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आता, कुछ बेसिक जो ग्रामर्स होती है वहीं से आता है। इट कुड बी डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब एक चीज देखो कि जो ग्रामर है इसका ऑल बेसिस इज रूल्स एंड विजन। व्हाट डू आई मीन बाय रूल्स, इज रूल्स देखो बेसिक रहते हैं कि ये रूल है, यहाँ पे ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, वेरी वेरी बेसिक थिंग। What do I mean by vision is that कि how far have you explored that particular grammar topic? तो उसके कितनी डेप्थ पे गए हो। डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम अपने 6th to 8th से ही करते आ रहे हैं, राइट। अब आपने अपने 6th to 8th में वो टॉपिक्स कितनी डेप्थ में करे हैं, दैट विल हेल्प यू विद योर क्लास 10 एग्जाम। नहीं भी करे डेप्थ में तो व्हाट डू यू डू अभी, इस पीवाईक्यूज को सॉल्व करो एंड वर्कशीट्स को सॉल्व करो,
बिकॉज दैट विल हेल्प यू सी कि पैटर्न क्या बन रहा है। जब आपको पैटर्न समझने आ जाए, योर ग्रामर बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रामर इन क्लास 10 इज ईदर एडिटिंग और क्लोज गैप फिलिंग। तो उसको एस करना और 10 out of 10 लेना गेट्स इजियर अगर आपको डेप्थ ऑफ टॉपिक है। आई वुड सजेस्ट कि 10th क्लास की बुक नहीं उठानी, 8th क्लास की बुक उठा के सारे रूल्स पढ़ लो जिसपे इन डेप्थ डिटेल्ड रूल्स गिवन हो। एंड ट्रस्ट मी, 10th क्लास में ग्रामर में नंबर लेना बहुत इजी है। यू जस्ट नीड टू पुट अ वेरी लिटिल बिट ऑफ एफर्ट एंड यू विल बी गुड टू गो। देन वी हैव राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहली चीज इज फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मेट फ्लॉलेस है तो आप लोगों को अच्छे से नंबर मिल सकते हैं। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहले लेटर राइटिंग है आपके पास। तो लेटर राइटिंग में सबसे बेसिक फॉर्मेट आता है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। दैट्स हाउ यू गो। इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। एनालिटिकल पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन से शुरू करते हो, 2 to 3 मेजर पैटर्न जो आपको डेटा में मिल रहे हैं वहां से शुरू करते हो, फिर डेटा को सपोर्ट करते हो, आपको क्या समझ आया, क्या रेफरेंस है, क्या कंक्लूजन है वो लिखते हो एंड देन यू गो अबाउट इट। पर्सनल ओपिनियंस अवॉइड करते हैं। कंक्लूजन या इन्फरेंसेस लिखना इज अ गुड पॉइंट फॉर योर एनालिटिकल पैराग्राफ। तो अब 30 डेज का रोड मैप क्या होगा अगर हमें 95% प्लस लेने हैं अपने इंग्लिश के एग्जाम में। वीक 1 लिटरेचर करेंगे अच्छे से। लिटरेचर अच्छे से क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ पेपर में लिटरेचर आएगा। वीक 2 में राइटिंग एंड ग्रामर पे फोकस करेंगे। इसको कहाँ से करेंगे? इसको हम अपने PYQ से करेंगे, इसको हम अपनी BBC से करेंगे, इसको हम लोग चैट जीपीटी को बोल के वर्कशीट निकलवा सकते हैं, इसको हम लोग मैं वीडियोस डालूंगी वहां से कर सकते हैं। सो वीक 2 में हम राइटिंग एंड ग्रामर करेंगे। वीक 3 में वी विल वर्क ऑन द PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे, टाइम्ड कंडीशंस में करेंगे, आपके वीक एरियाज क्या है वो करेंगे। एंड PYQ सॉल्व करो तो टीचर से जरूर 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 चेक करवाएंगे। वीक 4 में हम रिवीजन करेंगे। किसकी रिवीजन करेंगे? जब लिटरेचर पढ़ेंगे तब क्या करेंगे? तब हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स में क्या लिखेंगे? थीम, टाइटल, मैसेज, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन, इन सबको कंबाइन करके नोट्स बनाएंगे, ये रिवाइज करेंगे। राइटिंग और ग्रामर पे आएंगे, फिर से नोट्स बनाएंगे। तब क्या लिखेंगे? तब हम नोट्स में बात करेंगे ग्रामर टॉपिक्स की, राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स की, रूल्स की, इसको रिवाइज करेंगे। PYQs में हमारी क्या गलतियां हुई, PYQs में हमने क्या पैटर्न देखे, लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखे, इस सब के और नोट्स बनाएंगे और उस सब का अच्छे से रिवीजन करेंगे। कुछ डेली हैबिट्स, NCERT नॉन नेगोशिएबल है, रीड करेंगे ही करेंगे। कीवर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंटली आंसर्स में यूज करना है। राइटिंग सेक्शंस के फॉर्मेट्स में कोई गलती नहीं करनी है और 10 मिनट्स के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग करनी ही करनी है। 95 लेना इंग्लिश में इज नॉट टफ। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग what the examiner wants from you and giving him that answer which he wants. That's it for your English with 95 Lena. I got a 98 in class 10th, 100 in class 12, and I was not the one जिसने English सारा साल पढ़ी है. I genuinely did English only during exams. तो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इंग्लिश में स्कोर करना, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। Anyone can do that. So that was for English board exams for class 10th from my side. I hope you found the tips and tricks helpful. And trust me, if you follow these for 1-2 months that are left for your preparation, you will be good to go and you can easily get a 95 plus in your English. Of course, English requires some effort, it requires some technicalities. You need a mentor, you need someone who guides you through the process, but it is worth the effort and it can either make or break your percentage. So take it seriously, do not take it lightly, and you will be good to go. If this video in any way helps you, do not forget to like, share, and subscribe. Do follow me on Instagram because I give you choti choti tips for your bade bade dreams. I'll see you in the next one. Until then, study well.